अच्छा देखें, अब ये जो आपके पहला चैप्टर है, दिस इज अबाउट physical quantities in units, and it has a couple of tables to learn and remember. And hence, you could see that there's one table right now in front of you that you have to learn and remember. It would be right to say that physics, mostly in O level and also in AS level, is more about physical quantities. अगर आप देखें, अगर आप एक चैप्टर का नाम देखें तो it's like more of discussing physical quantities. Like kinematics में आप speed, velocity, acceleration discuss करते हैं, and there are certain names of the chapters which are entirely dedicated to the physical quantities as well, like force, density, pressure, deformation, which is extension, that is also measured, and that's also an example of physical quantity. There's a very long list. So physics contains a lot of physical quantities, and with those lots of physical quantities, what we actually do is that we classify these physical quantities initially into two categories, as base quantities and derived quantities. ठीक है? तो सिर्फ हमें 7 लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज याद रखनी है which are base quantities, और इसके बाद ऑब्वियसली अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो इस टेबल में नहीं एग्जिस्ट करती है, that would be an example of derived quantity, and then hence its unit would be called derived unit. So that's how you can sort of classify. तो ये एक टेबल है जो आप अगर याद कर लें, और मैंने अभी तक एग्जाम में ओनली फर्स्ट 5 टेस्ट होते हुए देखा है, but I recommend कि आप पूरा टेबल याद करें, लेकिन अभी तक एग्जाम में जो है वो फर्स्ट 5 ही याद करें, but the total list is of 7 quantities. So if you learn these 7 quantities as base quantities and identify or recognize the units as base units, then naturally every other quantity you would be able to identify. जो मुझे यहाँ नहीं नजर आ रही है, I can't see density here, I can't see volume here, I can't see pressure, I can't see force, I can't see power here, I can't see work here. तो ये सारी quantities जो मुझे इस टेबल में नहीं नजर आ रही हैं, naturally these quantities are what? These are derived quantities, and their corresponding units would be derived units. So base quantities क्या होते हैं? It's a list of 7 quantities which you have to learn and remember. Now there are 2 criteria for making this list of 7 quantities. One is that these quantities can be used to express units of all other quantities as products and quotients. यानी आप products और quotients के फॉर्म में आप हर दूसरी क्वांटिटी के यूनिट्स एक्सप्रेस कर सकते होंगे इसकी मदद से, which is why this is the minimum number of quantities that you needed to do that. Second thing is that these are directly measurable quantities. ये वो quantities हैं जिनको directly measure किया जाता है. Because you know, one might probably think कि sir, अगर आपको एक choice दी जाए कि charge should have been a base quantity or current should have been a base quantity, so one would think probably charge, because we define current as rate of flow of charges. लेकिन देखिए आपको यहाँ charge नहीं नजर आ रहा है, आपको यहाँ current नजर आ रहा है. Criteria क्या है? Criteria ये है कि वो quantity जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकें. आप सर्किट में लगा के चार्ज नहीं मेजर करते, आप क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं. So that's how you actually sort of devise these quantities. याद करना है, it's very important that you learn these quantities. जैसे मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में टोटल 3 टेबल्स हैं जो आपको याद करने होंगे, and we will come across those tables as we move on. लेकिन जो अभी फिलहाल आपको याद रखने हैं वो ये, और इसमें I think we can take this opportunity. 3-4 दफा अगर हम पढ़ते हैं length, mass, time, temperature, current. Length, mass, time. They're very, very obvious. Temperature and current, 2 चीजें और याद करें. और जैसे मैंने कहा, amount of substance और light intensity थोड़ी सी नजर रखें, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन अभी तक कभी आपसे ये एग्जाम में टेस्ट नहीं किया गया है. So base quantities are length. Length is measured in meters. Mass is measured in kilogram. Time is measured in seconds. Temperature को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे. उसकी जो बेस यूनिट है वो केल्विन है. You'll be marked wrong अगर आप टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस लिखेंगे. This is entirely learning based and nothing else. Current is going to be measured in amperes. और इसमें भी जरा सा ध्यान में रखिएगा, meter and kilogram. This is not kilometers and this is not grams. So you have to remember that. Length is in meter, mass का standard base SI unit kilograms होगा. Time in seconds, temperature in Kelvin, and current in ampere. अगर आप ये 5 quantities याद कर लेते हैं तो आपका पहला टॉपिक बहुत आसान होगा.
It will be very easy for you to move forward. देखिए इसमें एक चीज होती है कि आप जब ये क्वांटिटीज इस्तेमाल करते हैं और जब आप इनके यूनिट्स लेते हैं तो ये वो यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत मॉडरेट वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर आप सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक मॉडरेट वैल्यू, यू नो, यू सीन अ मीटर रूल, दैट्स लाइक हाउ बिग 1 मीटर है। तो किलोमीटर वाज नॉट ऑप्टेड बिकॉज ऑफ दैट रीजन। जो जनरली मोस्ट यूज्ड क्वांटिटीज हैं दे विल लाई इन द मीटर रेंज। इसी तरह से ग्राम्स इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप सोचेंगे 1 ग्राम को, अगर आप इमेजिन करें, वैसे तो हमने एस्टिमेट्स करने हैं क्वांटिटीज के, बट इफ यू लुक एट think of 1 gram is a very small quantity. 1 kilogram आपने देखा होगा, like if you buy 1 kg of apple, that's like a moderate amount of quantity. तो ये इसकी वजह है कि इनको एक certain moderation acquire करनी है for quantities that are used more often. So that's why they think. सिर्फ 2 criteria हैं। एक criteria क्या है कि हर quantity को आप इन quantities की मदद से express कर सकते हैं। You wanted to have base quantities to be as little or as few as possible, and hence you would be able to express all others. So, the choice could have been voltage and not current, but since you have current, you would be able to express voltage. So you didn't need to have another extra base quantity, right? So I didn't say कि हर वो quantity जो directly measurable है, वो, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली मेजरेबल है। अगर आप बेसिक सिलेंडर लें, आप उसमें वॉल्यूम डालें, आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन करंट और चार्ज में से जब चॉइस करनी पड़ी तो आपने करंट को चूज किया और चार्ज को। दैट क्राइटेरिया वाज ऑन द बेसिस ऑफ इट बीइंग डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी। तो आप डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी के साथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज को आप बेस यूनिट्स कहना चाहते थे, ताकि अब आपका आगे वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपने बिल्कुल नेक्स्ट चीज करनी है, उसमें हम हर क्वांटिटी के यूनिट्स को बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें। दैट्स व्हाट वी कैन बी डूइंग। तो जब हम हर क्वांटिटी के यूनिट्स को बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वोल्टेज भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी डिडंट नीड टू हैव दैट इन दिस पर्टिकुलर। तो अच्छा, इसमें थोड़ी सी नोटेशन है, उस नोटेशन को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। दिस इज समथिंग बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो यू विल जस्ट बी एबल टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्योंकि देखिए m stands for mass as well, m stands for meter as well, so that creates a bit of a confusion कि कब मैं m for mass लिखना चाह रहा हूँ, कब मैं m for meter लिखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आप जब भी किसी क्वांटिटी को लिखें तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लें और फिर उसके यूनिट को आप आउटसाइड द ब्रैकेट्स लिखें, सो दैट वे यू विल अवॉइड दैट पर्टिकुलर कंफ्यूजन। सो दिस is one way to express length unit is meter. This is one way to express mass unit is kilograms and force unit is newton. जहाँ पे पहली दो क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स बेस यूनिट्स हैं। फोर्स इज नॉट अ बेस क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज नॉट अ बेस यूनिट, लेकिन दिस इज वन वे टू एक्सप्रेस दैट। तो थोड़ी बहुत मैथ की आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी, और जैसे ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करने थे आपके। ये बहुत ही मैथ के बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, which includes if you have two quantities multiplying, you add their powers up. अगर दो क्वांटिटीज विद द सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर दो क्वांटिटीज विद द सेम बेस डिवाइड हो रही हैं, तो आप उनके पावर्स को माइनस कर देते हैं। अगर एक पावर है क्वांटिटी पे और फिर उसके ऊपर दूसरी पावर है, तो द पावर्स वुड गेट मल्टीप्लाइड, सो इट बिकम्स a power x1. If your power simplifies to 0, you can rewrite that as 1. जैसे ये कहलाते हैं कॉमन बेस फॉर्मूलाज, क्योंकि इनमें बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट। ऐसे ही कॉमन पावर फॉर्मूलाज भी होते हैं। तो क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइंग with same powers, so you can write them as a single power multiplying the base. Similarly, if quantities are dividing with the same powers, you can write them as a single power after dividing. तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एक टर्म के ऊपर पावर मौजूद है on one side of the equation and you want to shift that power on the other side, then that power flips over, it reciprocates. तो ये कई जगह पे आपने मैथ में ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए होंगे, इनको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा आपको इसको रिकॉल करवाना था, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू बी एबल टू डू, जैसे मे से सेकंड थिंग, क्योंकि मैंने पहले तो आपसे कहा कि आपने वो 5 क्वांटिटीज याद करनी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। देयर इज नो वे आउट अगर आपको ये 5 क्वांटिटीज नहीं याद हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स नहीं याद हैं।
ये 5 क्वांटिटीज आप याद कर लें। बहुत आइडियल होगा अगर आप लाइट इंटेंसिटी का यूनिट किंटेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल भी याद कर लें, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत वेरिएशन एग्जाम में आ जाए। नाउ हैविंग दैट बीइंग सेड, वी वुड नाउ नो कि अगर हमारे पास पहली चीज तो आपसे पूछी जा सकती है वो ये कि पूछी जा सकती है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर आप का उसका ऑलरेडी कोई यूनिट होगा और वो डिराइव यूनिट होगा विच इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, तो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है और उसका यूनिट मौजूद है, देन यू वुड बी एबल टू एक्सप्रेस द यूनिट इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट। आप ये आपको पहली चीज करने आनी चाहिए। और इसमें जो मेजर हर्डल शुरू में आता है वो ये आता है कि एट टाइम्स यू वुड नॉट नो द फॉर्मूला, यू रियली नीड टू नो द फॉर्मूला। डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन कीप आस्किंग मी, लेकिन थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और ये वो फॉर्मूलाज हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ एएस सिलेबस मुझे वैसे आपको करवाने भी हैं। तो वी एज वी गोना मूव फॉरवर्ड वी गोना डू दीस फॉर्मूलाज एज वेल। तो कुछ फॉर्मूलाज रिकॉल हो जाएंगे। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज आप ये फॉर्मूलाज याद कर लें, अभी भी याद कर लें, क्योंकि अभी आपके अगर टेस्ट आएगा तो उसके अंदर फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। यू डोंट नो द फॉर्मूला, यू वुडंट बी एबल टू डू दैट। तो आपसे कहा जाता है कि किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एक्सप्रेस करें। लाइक फोर्स है, आपको पता है कि फोर्स न्यूटन में मेजर होता है, लेकिन आपसे कहा जा सकता है कि एक्सप्रेस न्यूटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट और यूनिट ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस, या और इसी तरीके से आपसे कहा जा सकता है। और इसकी फर्दर एडवांटेजेस हैं, वो मैं जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं। प्रेशर है, आपको पता है प्रेशर पास्कल्स में मेजर होता है। आपसे कहा जा सकता है कि प्रेशर के यूनिट को बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें। वर्क है, एनर्जी है, ये दोनों एक ही क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो आप इसको जूल्स में मेजर करते हैं। आपसे ये कहा जा सकता है कि इसको आप जो है वो बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करें। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन फॉरएवर। लाइक जैसे आपने भी वोल्टेज की एग्जांपल दी थी, मुझे वोल्टेज के बारे में भी कहा जा सकता है कि वोल्टेज को आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एक्सप्रेस करें। So I could be asked to express units of certain quantities, and in few cases, the units are already expressed in terms of base unit, like acceleration. Acceleration आपको पता है क्या होती है? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप एक्सेलरेशन का यूनिट चेक करें, मैं अगर कहता हूँ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस हुआ हुआ है, यानी ये इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? मीटर और सेकंड को, जो ऑलरेडी बेस यूनिट। दैट्स परफेक्टली फाइन। या फिर अगर मैं स्पीड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक और कोई डिफरेंट एग्जांपल दूं, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर, दैट्स ऑलरेडी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, क्योंकि तो इसका कोई दूसरा डिराइव यूनिट है नहीं। लेकिन न्यूटन आपको पता है फोर्स का यूनिट है और वो वैसे डिराइव। यू कुड बी आस्क्ड एंड यू बीइंग आस्क्ड a lot of times to express such units in terms of base unit, and you have to split them up into formulas till you are able to express them. Like for example, मुझे force को express करना है या unit of force यानी न्यूटन को express करना है in terms of base unit. So I would say that I'd recall the formula for force. I'd say what is force? It's the product of mass and acceleration. I need to know that. Otherwise, I won't be able to do it. जो फॉर्मूला आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूलाज अभी थोड़े याद रखने पड़ेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आगे बढ़ के हम ये सब दोबारा डिफाइन, यानी फोर्स में दोबारा डिफाइन करूंगा आपको, प्रेशर दोबारा डिफाइन करूंगा, डेंसिटी दोबारा डिफाइन, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है आगे का। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज यूनिट ऑफ मास टाइम्स यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आई कुड रिकॉल के मास मुझे पता है बेस यूनिट्स में क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन मुझे पता है बेस यूनिट्स में क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। देयर यू गो। द यूनिट ऑफ फोर्स which is Newton, expressed in base units is kilogram meter per second square. That's my answer. ये 1 से 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम। सिमिलरली मुझसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर को एक्सप्रेस करो, the unit of pressure is pascals, और मुझसे कहा जा सकता है कि pascals को एक्सप्रेस करो in terms of base units। तो मुझे उसके लिए प्रेशर की डेफिनेशन को रिकॉल करना। I'd be like, well, pressure is force upon area. So the unit of pressure must be unit of force upon unit of area. If I look at the previous example, I can easily work out the unit of force क्या है। But for instance, you're doing it in exam और आपको नहीं याद आ रहा कि force का unit क्या है,
तो आप जितना उसको ब्रेक करना चाहें हर क्वांटिटी को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, यानी आप फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. And probably at that point you are in that situation, you be able to, okay, yeah, I know all of these units in computation. I can replace unit of mass as kilogram, unit of acceleration as meters per second square, and unit of area as meters square. I'll simplify and I'll get myself kilogram per meter per second square. So that would be a way to express unit of pressure. So I know from here onwards मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड. तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे गाइस, लेकिन कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसके बारे में आपको लगता हो कि फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? सो डू दैट, एंड बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स दैट, मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूं कि कुछ इस तरह के आसान सवाल भी पूछे जाते हैं. विच पेयर ऑफ यूनिट्स आर एसआई यूनिट्स, ये आपसे पूछे जाते हैं. अब ये दिस इज एंटायरली लर्निंग बेस, राइट? आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटीज जो हैं दो यहाँ पे एसआई यूनिट्स के, एम्पेयर डिग्री सेल्सियस, एम्पेयर केल्विन, कूलम डिग्री सेल्सियस, कूलम केल्विन. व्हाट डू यू थिंक इज एन आंसर? वेरी गुड, प्लीज द आंसर बिकॉज़ एम्पेयर एंड केल्विन. इसी तरीके से व्हिच इज अ पेयर ऑफ एसआई बेस यूनिट्स, नीचे पूछा जा रहा है आपसे दोबारा. वेरी गुड, इट विल बी किलोग्राम एंड केल्विन. तो कुछ तो बिल्कुल इसी तरह के आपके बेसिक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. अब जैसे मैंने स्पीड है, इसका मुझे ऑलरेडी पता है कि बेस यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है, एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, फोर्स अभी हमने निकाला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? अब अगर फर्स्ट करें कि आपको एनर्जी का बेस यूनिट बताना है, तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? दिस इज ऑन पेज 3, the base unit of energy. Power is energy upon time. मैं अगर एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं और ज्यादा फंस जाऊंगा क्योंकि मुझे पावर का यूनिट नहीं पता. आई गो टू समथिंग व्हिच इज मोर बेसिक. अच्छा, इससे हम एक और भी बात एक्सप्लोर करते हैं. देखिए, अगर मैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. इधर एक और टर्म भी हमारे सामने आ गई है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समटाइम्स यू ऑल्सो हैव डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स. कुछ इक्वेशन में जैसे कहीं कोई नंबर लिखा हुआ आ रहे हैं ना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि वो, सॉरी देयर इज अ लैग, यू बी एबल टू सी इट इन अ बिट, बट अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहलाएगा. कहीं पे आपको पाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे आपको 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है. और ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ बेटा कि कुछ क्वेश्चंस में वो C लिखता है, P लिखता है, T लिखता है और कह देता है इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज के लिए वो कह रहा है इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसमें कोई यूनिट नहीं है इस्तेमाल. तो या तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपको खुद पता चल जाता है कि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अदरवाइज वो बता देगा इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वो उससे आपके पता चल जाएगा उसका कोई यूनिट नहीं है. तो एक्चुअली unit of energy should be unit of half, and there is no unit of half. Unit of m, unit of v square, right? So what do I write in place of unit of m? Half की जगह तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा. Very good. And in place of v, meters per second, and then there's a whole square onto that. ये इसलिए मैंने आपको इंडस्ट्रीज के फॉर्मूलाज बताए कि अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एंड सेकंड पावर -2. ये वाला फॉर्मूला है कि अगर आपके पास होल पावर है, if you have a whole power, so it comes in both quantities. तो इस तरह से ये if there's a whole power, it comes in both quantities. तो इसलिए वो मीटर्स पर सेकंड पे अगर होल स्क्वायर है तो वो मीटर पे भी आएगा और सेकंड पे भी आएगा. नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर per second square. But as we did talk about it, it has multiple approaches, and you should know that we can do it in multiple possible ways. तो आपको ये भी पता है कि एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या है? mgh.
mass is measured in kilogram. Acceleration due to gravity or gravitational field strength is measured in, well done, or height is measured in, it should simplify to the same thing. It does simplify to the same thing. Kilogram meter square per second square, yet again. और आप ऑल्टरनेटिवली ये भी देख सकते हैं कि एनर्जी इज ड्यू टू वर्क डन. तो अगर मैं वर्क का यूनिट निकालता हूं, वर्क क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो उससे भी यही आंसर आना चाहिए. और अगर मैं अभी भूल चुका हूं कि फोर्स का क्या यूनिट है, तो मैं फोर्स को फर्दर ब्रेक कर सकता हूं. मास, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. बिकम्स व्हाट? किलोग्राम meter per second square meter. Simplifies to kilogram meter square per second square. There you go. हर दफा वही आएगा जो भी अप्रोच आपने. लेकिन बस ये छोटा सा है कि अगर आपको अप्रोच देते हुए ये थोड़ा सा सोचना, जैसे आपने कहा कि सर हम पावर वाला फॉर्मूला, लेकिन पावर के लिए फिर हम थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं. जैसे आपने भी अच्छा सोचा, लेकिन आपने कहा कि खुद ही आपने फिगर आउट कर लिया कि अगर आप करंट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बिकम अ वेरी वेरी लॉन्गर रूट टू इट, राइट? अब हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पावर चाहिए. तो पावर वुड बी व्हाट? पावर वुड बी एनर्जी अपॉन टाइम. द यूनिट ऑफ पावर is unit of energy divided by unit of time. I can use the energy from unit from above, but if not, I can rewrite energy as m g h divided by time. क्योंकि एग्जाम में तो आपको नहीं याद होगा कि एनर्जी का क्या यूनिट है, तो आपको जितना आपको स्प्लिट करना है आप स्प्लिट कर सकते हैं. या तो ऑब्वियसली हम एक के बाद दूसरा कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन मिल रहा है. तो मास गोस किलोग्राम, एक्सेलरेशन गोस मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, हाइट गोस मीटर, ये तो हमने पहले ऊपर किया था, एंड टाइम विल बी इन सेकंड्स. So it will be kilogram meter square per second square. This is how you tend to express the units in terms of base units. अब थोड़ा सोचते हैं कि अगर मुझे चार्ज एक्सप्रेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा. Since current is defined as charge upon time, so charge would be current into time, and hence the unit of charge would be unit of current multiplied by unit of time. So that becomes a one-step thing, doesn't it? Because current is directly amperes and time is directly seconds. बहुत कम बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद होती है जो ओ लेवल में पढ़ाई जाती है, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन per unit charge, and unit of voltage would be unit of work over unit of charge. That's great. और फिर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि भाई ये वर्क तो मुझे नहीं याद आ रहा, वर्क का क्या यूनिट है, तो I'm going to split that up, right, as force into displacement. ये जरा लंबा हो जाएगा. This is force, displacement, and charge would be current and time. और फिर मैं फोर्स, वैसे मुझे लगता है अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर, वो नेचुरली भी, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली आपको पता है कि मास इज किलोग्राम. लेकिन फिर भी अगर हम इसको फर्दर स्प्लिट करके लिखना चाहें, मास, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, करंट, टाइम, अब हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. मास इज इन किलोग्राम meters per second square meter ampere second. इसमें जो है ना आप
और भी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, जैसे आप पावर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर, बट दिस इज प्रीटी गुड, आर इक्वल्स वी ओवर आई। और वोल्टेज की जगह हम वर्क डन अपॉन चार्ज लिख देंगे। Q is IT. अब देखिए इसने एक फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, थर्मल एनर्जी Q नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड, ये आपने ओ लेवल में किया होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट के फॉर्मूला में। हमें L का यूनिट निकालना है, वी हैव फाइंड आउट द यूनिट ऑफ L। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि कांस्टेंट्स के यूनिट नहीं होते, मैंने कहा देयर आर सम सर्टेन डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स जिनके यूनिट नहीं होते। तो हमें L का यूनिट निकालना है, सो एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड यूनिट ऑफ समथिंग, वी विल रीअरेंज इट एज सब्जेक्ट ऑफ लिक्विड, L equals Q over N. So unit of L would be unit of Q divided by unit of N. Q is basically thermal energy, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो थर्मल एनर्जी हो या वो एनर्जी हो, वो एनर्जी ही है। मुझे जो भी आसान सा फॉर्मूला याद पड़ता है एनर्जी का, वो मैं उसी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे mgh लिख सकता हूँ। और मास तो कैंसिल हो रहा है, G is meters per second square and H is meter. That simplifies to meter square per second. E तो दोनों तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा था यूनिट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे यूनिट मौजूद है। और दूसरा, ये जैसे अभी आपने नोट किया होगा, इसकी डेफिनेशन भी रॉन्ग है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट एनर्जी पर यूनिट करंट, इट्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो दैट वे भी नहीं होगा। ऑल्दो ये डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन ये भी यूनिट यूज कर रहा है और उसने कंडीशन रखी है कि यूनिट्स नहीं यूज होने चाहिए। You seem confused. Can you ask your question? देखो जैसे यहाँ पे उसने कहा था कि which of the following definitions is correct, तो पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि करेक्ट होना चाहिए, and uses only quantities rather than units, यानी उसको यूनिट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो डेंसिटी को अगर वो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखता तो सही था, लेकिन उसने क्यूबिक मीटर लिख दिया, इसका मतलब उसने यूनिट इस्तेमाल कर लिया। ये डिस्पाइट बीइंग अ करेक्ट डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें यूनिट इस्तेमाल हो गया। फिर ये तो खैर हमने इसको रूल आउट इसलिए कर दिया क्योंकि तो वैसे ही डेफिनेशन ही इनकरेक्ट है, तो इससे इसका सब, हाँ ऑल इसमें यूनिट भी इस्तेमाल हो रहा है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, टाइम लिखने के बजाय उसने सेकंड लिखा है, ये नहीं कि उसने गलत लिखा है, इसलिए यहाँ यूनिट इस्तेमाल कर लिया। जबकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी क्वांटिटी है, फोर्स भी क्वांटिटी है और एरिया भी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये इसने सही लिखा। ठीक है, ओके लेट मी शो यू द वर्किंग। आपको थोड़ा सा इसको पहले तो रीअरेंज करना था कि आपको K का यूनिट चाहिए, तो यूनिट ऑफ F ओवर R भी हो जाएगा। आई एम होपिंग, सपोजिंग कि आपने वो डायरेक्टली लिख लिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर और मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा रेडियस में और स्पीड में, दैट सिंप्लीफाइज टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ठीक है,
So this question I have to check that which expression represents energy. तो वैसे मुझे पता है कि एनर्जी होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो अगर जिस एक्सप्रेशन में सेम यूनिट आ जाएगा, that means that would be representing energy. So I have to do it by trial and error. I'll try option A, then B, then C. जहाँ पे मैच कर जाएगा, that would be. I think for the last MCQ सिर्फ प्रेशर को ही फिगर आउट करना था, क्योंकि बाकी तो आपको ऑलरेडी बेस यूनिट्स में मालूम है. तो प्रेशर वुड बी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and that's only in one option. अच्छा, मैं ये गलती नहीं कर सकते कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखूं, क्योंकि ये बेस यूनिट नहीं है. उसने कहा था एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट. तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, acceleration is meters per second square, and height is meters. So that confirms C as the correct option. Right, guys? So that's pretty much it for the day, right?